हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो में कंजंक्शंस को कंप्लीट कर रहे थे। कंजंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। कंजंक्शन मीन्स वर्ड्स विच आर यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं आपस में दो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, जो हम जहाँ तक हम कर चुके थे। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द 4 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट पार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में जाइए, वीडियोस में जाइए, चैनल की वीडियोस में जाइए और जो है सर्च करिए। नेक्स्ट पेज नंबर हमारा है जो हम करेंगे इसके बाद 84 कर चुके हैं, 85 कर चुके हैं, 86 कर चुके हैं, हम 87 करेंगे। नाउ लेट्स सी द 87 पेज नंबर। लेट्स करेक्ट इट। वी हैव कंप्लीटेड द ए, जिसमें कि हमको आइडेंटिफाई करना था प्रेपोजिशन को और कंजंक्शन को। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स परफेक्ट इट। हियर यू हैव टू राइट द either it belongs to the coordinating or subordinating conjunctions. Okay, you have to also fill with the suitable conjunctions. तो चलिए suitable conjunction क्या होगा according to the sentence? First will since होगा first का और subordinating से belong करता है। See the second here, although will come, and although आपका subordinating conjunction है। Now come to the next page. While belongs to the subordinating, and in fourth if will come, और if subordinating clause है आपका subordinating conjunction। Fifth as, it's also subordinating। Sixth yet it belongs to the coordinating। Seventh since subordinating। Eight till subordinating। Ninth before coordinating, before subordinating, and in 10th and belongs to the coordinating। 11th unless and it belongs to the subordinating। 12th when subordinating। 13 since subordinating। 14 also since subordinating, and in 15 although will come, it belongs to the subordinating। Clear? Now come to the next exercise. Here you have to join these sentences using subordinating conjunction। इसमें आपको subordinating conjunction यूज करना है और आपको अपनी नोटबुक में करना है। जैसे फर्स्ट का आएगा the sun shone, again I am repeating the sun shone, it had stopped raining। Clear? And in second, as he was not there, I spoke to his father। यहाँ पे फुल स्टॉप एज इट इज अप्लाई करेंगे आप, जहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। थर्ड में टेल देम दैट आई विल कम, दैट के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा। फोर्थ में ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। इन फिफ्थ व्हेन आई वॉज यंगर आई वॉज रेस्टलेस। इन सिक्स्थ think hard before you start answering the questions। before के बाद full stop नहीं आएगा। in seventh be careful about spending money before it is too late। clear? in eighth I don't understand why it happened, full stop will not come here। in ninth he started crying although he was not hurt। 10th you will finish designing this if you work all night। finish, sorry। So in next exercise join these sentences using correlative conjunction। तो correlative conjunction मैंने आपको बताए थे जो दो पेयर साथ के साथ चलते हैं। क्लियर? जैसे not also, not only but also, both and, though yet, no sooner had than। clear? So let's see the answer of first here। He not only sells mangoes but also oranges। Please check the answers। I shall both sit alone and listen to music। Though he rushed to the airport, yet he missed the flight। In fourth, no sooner had he bought an ice cream
then a monkey snatched it. In fifth, he is not only fast but also accurate. In sixth, neither his brother nor his sister has came. In seventh, he is neither a criminal nor a cheat. In eighth, he was not only tired but also thirsty. Now come to the next page. See the ninth here. No sooner my brother got well than my sister got ill. Clear? In 10th, Kareem not only works hard but he also works fast. In 11th, though you may go, yet I will stay. In 12th, the mango is not only small but also sweet. Here in D, you have to write the correlative conjunction according to the given bracket where it will come. Okay, तो चलिए लगाते हैं correlative conjunction को जो ब्रैकेट में दिए हैं सेंटेंस में कहाँ पर आएंगे. No sooner, एज सून की प्लेस पे आपको नो सूनर लगाना है. नो सूनर द गेट ओपनड देन द डॉग बार्क्ड. फुल स्टॉप नहीं आएगा, देन आएगा उसकी प्लेस पे. दिस नॉट इज सो टाइट दैट आई कैन नॉट अनटाई इट. क्लियर? ये आपके कोरिलेटिव हैं, पेयर हैं जो साथ साथ चलेंगे. थर्ड देखिए, एज सून एज आई फिनिश्ड डिनर the guest arrived. Fourth, hardly had the match started when the electricity went off. Come to the E part. Here you have to use suitable conjunction, okay, according to the sentence. तो चलिए फटाफट से देखते हैं. For will come after her, and in second, but will come after dance. You have not write full stop. आपको नहीं लिखना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, उसकी प्लेस पे आपको कंजंक्शन अप्लाई करना है. थर्ड में ऑल्दो सबसे बिगनिंग में आएगा और स्टिल नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे. फोर्थ में आपको सो अप्लाई करना है, यू आर लेट सो. फिफ्थ में दो आएगा बिगनिंग में. सिक्स्थ में सेंचुरी के बाद येट होगा. इन सेवंथ एंड होगा फुल स्टॉप की प्लेस पे. एट्थ में माई सिस्टर इज नॉट ओनली डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर. इज भी नहीं आएगा यहाँ पे. माई सिस्टर इज नॉट ओनली डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर. नाइन्थ में इफ यू गो अर्ली टू द मार्केट यू कैन गेट सम वेरी गुड बार्गेन्स. 10th में the boy is in critical state because he met with a serious accident. In 11th but होगा in a place of full stop. In 12th आपका क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे till आएगा. May I wait over here till they are repairing my car. Now come to the F part here given. You have to write the suitable conjunctions. Okay. So or will come in first and but will come in second. Third but होगा और फोर्थ में एंड होगा. एंड इन फिफ्थ बट एंड इन सिक्स इफ. सेवेंथ में अनटिल भी लिख सकते हैं, अनलेस भी लिख सकते हैं. एंड इन एट इफ विल कम. एंड इन नाइन्थ बट भी और एंड भी आ सकता है. 10th में बट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. इन 11th सिंस विल कम. इन 12th टिल और अनटिल दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. 13 में बोथ और एंड आएगा. 14 में दैट. 15 में नाइदर नॉर ही लाइट. जी में देखिए इन दीज सेंटेंसेज आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्रेपोजिशन और कंजंक्शन. आपको फाइंड आउट करना है जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो बिलोंग करेंगे प्रेपोजिशन से या कंजंक्शन से. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट है कंजंक्शन. सेकंड का अराउंड प्रेपोजिशन है और बिफोर कंजंक्शन है. थर्ड में बट कंजंक्शन है. फोर्थ में अनटिल कंजंक्शन है. फिफ्थ में सिंस प्रेपोजिशन है और सिक्स्थ में फोर प्रेपोजिशन है. ऑल्सो सेवेंथ में आपका फोर कंजंक्शन है. एट्थ में बट आपका कंजंक्शन है. नाइन्थ में बिलो प्रेपोजिशन है. 10th में बिफोर प्रेपोजिशन. 11th में कंजंक्शन है. 12th में फोर प्रेपोजिशन है और 13 में आफ्टर प्रेपोजिशन है. 14 में सिंस प्रेपोजिशन है और 15 में एट आपका प्रेपोजिशन है. सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज
with answers. Thank you for watching this. If you like this, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने या तो लिटरेचर करेंगे या ग्रामर वर्क। लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।